Good afternoon, student. Yesterday, I explained this chapter, a bicycle in good repair, and uh, and this chapter is only for Unit SA2. Okay. In Unit third, there are two chapters which come in your exam. First, the invention of beta bonds, and second, fire, friend, and foe. And yesterday, I explained this chapter as well as reading and half explained. And now I explain the summary in English, the whole chapter at first. So let's start. A bicycle in a good repair. The bicycle ride. One of the friend of the author suggested that the two should go for a bicycle ride the next day. The author reached the place half an hour before his friend and was waiting for him in the garden. The author's friend inquired about his bicycle and then gave it a shake holding its front wheel and the fork. After a while, the man took out the front wheel of the cycle while the author was away for a while looking for hammer. The bicycle inspection and its repair work, the author insist on putting on the various parts of cycle in place, but his friend wanted to check the front wheel. He unscrewed something and from somewhere around a dozen of ball bearing came out. His friend insisted that the author must collect all of them, else the bicycle might not be resorted to its old condition. The author collected around 60 of them and kept them in his hat. The author's friend now started taking off the gear case. The author warned him not to mess up with the gear case. What his friend said that nothing is as easier as taking off the gear case. He took it off easily but had a nightmare while fixing it back to its place. And I told you yesterday that in this chapter a message reaches that we should not involve any work that we can't expert in that work. किसी काम में उसमें नहीं घुसना चाहिए जिस काम में हम एक्सपर्ट नहीं हों, उस काम को मतलब मीन्स नहीं करना चाहिए जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं हों. His bicycle, which was until now in a good condition, was now lying scattered, divided in many parts. Author wanted to stop his friend from causing further troubles, but he admit that he is weak at hurting other. Then it was the time for the chain which he tightened to an extent that it stopped moving. He then loosed it until it became twice as loose as it was before. Hard work to collect the part. After applying his trick on the cycle, the author's friend seemed to be contented and now wanted to put all the pieces back into their place. It took a lot of time and a great effort. The process revealed that his friend was inexperienced and knew nothing about repairing a cycle. After struggling for many hours, his friend was able to somehow fix the different part of the bicycle. The author took him to his back kitchen where his friend cleaned himself and then the author sent him back to the home. My student, dear student, here the chapter has been closed, finished, and now we explain this chapter in Hindi. Okay, summary only. जो साइकिल की सवारी फ्रेंड लेखक थे, राइटर थे, उनके बारे में उनकी जो एक एक्सपीरियंस है उनके फ्रेंड के लिए, कि फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस है कि उनके दोस्त ने उनके संग जो करा
तो उससे ने ये मैसेज मिला कि किसी भी वर्क को मतलब हम जिस काम में एक्सपर्ट नहीं हो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। पहले हम उसका मतलब नॉलेज होनी चाहिए, तब उस काम को हमें आगे करना चाहिए। ऐसी ही साइकिल की सवारी जो था, लेखक ने अपने एक मित्र को प्रस्ताव दिया, प्रपोस्ट करा, सजेस्ट करा कि अगले दिन वे दोनों साइकिल की सवारी करेंगे। आधा घंटे पहले ही लेखक उस जगह पे आ गया और एक गार्डन में वो वेट करने लगा अपने फ्रेंड का। लेखक के मित्र ने उनकी साइकिल के बारे में पूछा और उसके आगे वाले पहियों को जोर से हिलाया। थोड़ी देर बाद मित्र ने, उसके दोस्त ने लेखक के उसकी साइकिल का अगला पहिया निकाल दिया और लेखक इस दौरान घर के अंदर मतलब लेखक से कह दिया कि लाओ मतलब ब्रिंग द हैमर, हथौड़ा लेके आओ। हैमर हथौड़े कहते हैं, हथौड़ा लेके आओ, हम इसे ठीक करेंगे, इसे रिपेयर करेंगे। और लेखक अंदर उसे हथौड़ा लेने भेज दिया। और जो वो था मतलब उसका फ्रेंड था आथर का, वो उसके भागों को जमा करना मतलब करने लगा। उसने अपनी सारी योग्यता जो थी उस साइकिल पे लगा दी, डिफरेंट टाइप को उसके करा, अलग अलग उसके पार्टों को मतलब बेल बिखेर दिया। साइकिल जो उसका था वो देखने लगा। लेखक जो चाहते थे कि भी साइकिल के जो उनके सारे पुर्जे इधर उधर जो फैला दिए उनके दोस्तों ने, वो उसे सेटअप कर दे, सही जगह पे लगा दे, अब उसे नहीं चाहिए रिपेयर। पर उसका जो मित्र था साइकिल के अगले टायर का निरीक्षण करना चाहता था, इंस्पेक्शन करना चाहता था। उसने कई बार एक बोल्ट कहीं से ढीला करा और पता नहीं कहाँ से वो बोल्ट उसने पहियों में से निकाला और उसमें से वॉल रिंग होते हैं, गोल गोल स्टील के रिंग होते हैं, साइकिल के बीच में पहिए के बीच में लगे हुए होते हैं, वो आपने देखा होगा। तो वो सारे रिंग निकल गए, बाहर आ गए। जब मित्र ने लेखक को फिर सुझाव दिया कि उसके सारे बेरिंग को जमा कर ले, जल्दी करे, अगर ये नहीं करे, उसने कलेक्ट नहीं करे, एक भी मिस हो गया तो साइकिल ठीक तरीके से नहीं चल सकेगी। लेखक ने वन बाई वन मतलब लेखक ने उस आथर से कहा, लेखक ने कहा अब उसने जल्दी से मतलब जो आथर है उनने जल्दी से जमा करे। उसमें से मुश्किल से 16 रिंग ही वो कलेक्ट कर पाया था। 16 रिंग जो गोले थे, गोली एक तरीके से उनको मतलब इकट्ठे कर पाया। और उसने कि कहीं खो ना जाए तो उसने अपनी इसे कैप में, टोपी में रख लिए सुरक्षित एज ए सेफ्टी के रूप में। अब लेखक के जो मित्र ने अब साइकिल का गियर बॉक्स निकालना शुरू करा। लेखक ने मित्र को चेताया, वार्निंग दी लेखक ने कि भाई गियर बॉक्स से छेड़छाड़ मत करो। लेकिन उसके मित्र ने कुछ नहीं कहा। गियर बॉक्स खोलने से आसान का उसने कहा भाई गियर बॉक्स क्या है, ये तो अभी ठीक करके देता हूँ मैं इसे, गियर बॉक्स तो बहुत ही इजी काम है, आपने क्यों मतलब एक्चुअली वो कुछ नहीं जानता था साइकिल के बारे में और फिर भी वो इतना इंटरफेयर कर रहा था हर चीज़ में। गियर बॉक्स लेखक ने मना करा कि भाई गियर बॉक्स को इंटरफेयर मत करो, लेकिन फिर भी उसने उसी को मतलब इंटरफेयर करा। उसके मित्र ने गियर बॉक्स खोलने से आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसने ये रिप्लाई करा आथर को। आथर ने कहा कि भाई गियर बॉक्स मत खोलो, लेकिन उसने कहा भाई गियर बॉक्स खोलने से इतना आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता। और यह कहकर उसने उसे आसानी से निकाल लिया। पर उसे वापस सही जगह पर लगाने एक बहुत मतलब नाइटमेयर आया था उसमें, इंग्लिश में नाइटमेयर था, एक बुरा सपने जैसा था। लेखक की जो साइकिल थोड़ी देर पहले एक अच्छी हालात में थी स्टार्टिंग में, अब वह कई भागों में बिखरी पड़ी है, जैसे आप पिक्चर में देखे रहे होंगे। लेखक ने उसे रोकना चाहा पर उसके मित्र ने उनकी कुछ नहीं सुनी और वो देखता रहा। सब उसके अपने उसकी साइकिल के मतलब उसने तितर बितर कर दिए, हेयर एंड देयर उसके जो भी पुर्जे थे साइकिल के सब इधर उधर हो गए। इसके बाद मित्र ने साइकिल की चैन को इतनी ज़्यादा कस दिया, इतने चैन को इतने तेज कस दिया कि अब वह आगे घूम नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने कहा अरे ये क्या कर दिए चैन में, तुम तो इस चैन बेकार कर दी। इसके बाद मित्र ने चैन को इतना ढीला कर दिया कि वह पहले से दोगुनी ढीली हो गई। बार बार वो चैन उतर जा रही थी, बार बार वो चैन उसकी उतर जा रही थी, बार बार डिसऑर्डर में हो रही थी। हर तरीके से उसने अपनी पूरी योग्यता लगा दी। अब उसने सोचा अब हल्के हल्के वो अपने जो पुर्जे उसने निकाले थे उसके फ्रेंड ने, अब वो तेबाग एक इधर उधर इकट्ठा करने लगा, उन पुर्जों को लगाने लगा। इसमें काफ़ी समय लग गया उसे और मेहनत भी लग रही थी। उसकी जो ये देख के स्पष्ट हो गया कि उसके साइकिल का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है लेकर आथर के फ्रेंड को, फिर भी वो उसमें मतलब इन्वॉल्व था हर चीज़ की। अरे ये तो बहुत इजी वर्क है, अरे ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। और ही हैज़ ए निल इन दिस नॉलेज। और भाई एक्चुअली में वो नील था। तो कई घंटों की मशक्क़त के, कई घंटों के हार्ड वर्क के बाद उसने लेखक ने मित्र से किसी तरह साइकिल के भाव को जोड़ने में सफलता मिल गई उसे। ही गेट सक्सेस टू रिकलेक्ट द ऑल पार्ट ऑफ द साइकिल। उसे एक तरीके से सफलता मिल गई, जैसे टेढ़े मेढ़े उसने फिट कर दिए, सही हो गया।
पर लेखक ने उसे घर पीछे रसोई घर में ले गए, जहाँ उसने कहा भाई अब मैं तुमसे दोबारा साइकिल के बारे में कहीं नहीं कहूँगा, और उसे लेखक को भेज दिया। माय डियर स्टूडेंट, I think that you understood fully the chapter. I explain in English as well as Hindi the whole chapter, a bicycle in good repair. Now the half I explain this chapter, and rest of the chapter I explain now. Okay, हाँ, second part. He then, ये आपको इसलिए बताया था, इसका जो पार्ट था कि जैसे कोई स्टोरी न्यू है, अब आपको जो जैसे जैसे कहानी होती रहेगी, फ्लो मतलब गोइंग ऑन होती रहेगी कहानी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग एवरी डाउट हैज बीन क्लियर्ड. So he then said that while he was about it would be see the chain for me. अब वो चैन देखने लगा. And at once begging taking off the gear case पे भी उसकी नज़र पड़ी. I did try to dissuade him from that. I told him that an experienced friend of mine once said to Solmani. मैंने उससे कहा कि भाई एक्सपीरियंस में अनुभव होना चाहिए ये काम करने के लिए. If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy new one, it comes cheaper. तो उसने इस जवाब में मेरे आंसर दिया कि अगर यार कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसे बेच लेना, ये बहुत सस्ती मिलती है साइकिल, इसे नहीं ले लेना इसकी जगह. He said, people talk like the who understand nothing about the machine. Nothing is easier than taking off a gear case. उसने कहा लेखक ने कि भाई गियर केस को मत छोड़ो, ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह है, यहाँ मतलब गियर केस होता है साइकिल के मेन होता है, हर किसी को नहीं डालना चाहिए. तो वो कह रहा है नथिंग ईजियर देन द टेकन ऑफ गियर केस, कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता. लेखक का फ्रेंड कहता है इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. आई हैड टू कन्फेस ही वाई राइट. इन लेस देन 5 मिनट ही हैड गियर केस इन 2 पीसेस. उसने गियर केस को 2 पीस में बांट दिया. लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़े हुए थे, रास्ते में. एंड वाई ग्रोबलिंग फॉर द स्क्रू, और स्क्रू को मतलब सहायता से मतलब मोड़ने लगा. ही सेड इट वॉज ऑलवेज मिस्ट्री टू हिम ही वाई स्क्रू डिसअपियर. उसने कहा यह मेरे लिए हमेशा रहस्य रहता है, स्क्रू इधर उधर हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी. हल्के हल्के में कॉमन सेंस ये था कि हल्के हल्के में कह सकता था, क्योंकि ही डेनीड एवरी माई प्रपोजल, क्योंकि उसने हर मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था. मैं कहता नहीं छुओ नहीं, मतलब हर बात का ये कंट्रोडक्टरी आंसर देता था. स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ. कुछ और मिस्चीफ करता है इससे पहले मैंने कहा रुक जाओ भाई. यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ ल्यूनेट. रेवेज मीन्स होता है डैमेज, नुकसान देना. ल्यूनेट माने होता है मैड पर्सन. क्या आप पागल हो गए हैं जो इतनी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी, मेरी प्रॉपर्टी को इस तरीके से तहस हेयर एंड मतलब बिल्कुल बेकार कर दिया. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट द गेट. मैं इसे अब ले जाऊंगा अपनी तरफ, जैसी है वैसी सही है. जब आथर काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट हो गए अपने फ्रेंड से. But I am weak when it comes to hurting other people's feeling, and I lake him muddle on it. He gave up looking for the rest of the screw. He said screw had a net of turning off while you first expected them, and that now I would see the chain. He चैन पे उसने काफ़ी वो करा, टाइट करा. ही टाइट ना चैन. फिर उसने पहले इतनी टाइट कर दी कि पहले साइकिल को चलना ही मुश्किल हो रहा था. फिर उसने एकदम लूज कर दी, लिखा है ही लूज इट अंटिल इट वाज टू दैट लूज इट बिफोर, कि ये पहले से भी मतलब बार बार इसकी चैन उतर रही थी, पहले से भी ढीली हो गई. Then he said we had better think to getting the front wheel back its place again. ऐसा लगता है कि आगे का पहिया हमें फुल वहीं लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि उसने आगे का पहिया भी निकाल दिया था. I held the fork open and he worried with the wheel. भाई पहिए के प्रति चिंतित था. At the end of 10 minutes I suggested, अंत के 10 मिनट मैंने उसे बताया, सजेस्टेड करा, he should hold the fork and that I should handle the wheel. उसने कहा मैं हैंडल कर लूँगा. I will change place. At length we did get the thing into position. At length we did get the thing into position. अंत में जो मतलब वो चीज़ें थीं वो हल्के हल्के उसने पोजीशन पे लाना शुरू कर दी. एंड इन द मोमेंट इट वाज पोजीशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग. और जैसी पोजीशन पे आई उसने एकदम ठहाका लगाया हंसी का. आई सेड व्हाट्स जोक. मैंने कहा था कि जो जोक मतलब व्हाट अ जोक, कितना मज़ा आया, क्या जोक है. ही सेड वेल आई एम एन एस. हाँ मैं गधा बन गया, मैं गधा हूँ. आप हर बात में सही हैं. यू आर एक्सपर्ट इन वाई टू रिपेयर इन बाइसिकल, और मैं ऐसा गधा हूँ. It was the first thing that he had made me respect him. I asked him what he had led him to the discovery. हाँ उसने पहली ऐसी डिस्कवरी खोज करी थी, उसने ऐसा मतलब इस तरीके से डिस्कवरी करी थी उसने, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं था, फिर भी उसने हर चीज़ को सही जगह पे लगा दिया तुक्के में. He said we have forgotten the balls. हाँ उसने कहा अरे हम बॉल तो भूल गए, जो बॉल थी रिंग बॉल थी पहिए में होती हैं. I looked for my hat.
मैंने अपने टोपी की तरफ देखा। इट वाइट टॉप्सी टर्बी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, जो कि उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी जमीन पे, रास्ते में। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, यू आर लुकिंग इन द पिक्चर। ही वॉज ऑफ ए चेयरफुल डिस्पोजन, ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट प्रोविडेंस। विश्वास करो, हम सब जगह सब चीज़ें सही जगह पे लगा देंगे। We found 11, we fixed 6 on one side and 5 on the other. And half an hour later the wheel was in the place again. सही जगह पे लगा दिया। It needed hardly to be added that really wobbles now. A child might have noticed, he said it would be a present. अब जो शुरू में था वैसा ही लगने लगी साइकिल प्रेजेंट में। I said, मैंने कहा, watching you do this of real use of me, it is not only my skill and fantastic me, इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने आप में। योर इनसेक्सिबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ जो तुमने मुझे कर दिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये तुम कर दोगे दोबारा फिट, क्योंकि तुमने जिस तरीके से उसके पार्ट इधर उधर कर दिए थे हेयर एंड देयर, तो आई डोंट बिलीव दैट यू कैन जो पार्ट जो थे उसे दोबारा आप सेटअप कर दोगे इसकी प्रीवियस पोजिशन पे। दस इनकरेज ही सेट टू वर्क टू रिफ्लेक्ट द गियर केस। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस। वह खड़ा था बाइसिकल लेके घर के सामने। एंड वर्क फ्रॉम ऑफ साइड, देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री। तब वो एक पेड़ की तरफ चला गया। ही वॉक फ्रॉम द वन साइड, देन ही होल्ड ऑफ इट while he lay on the ground with his head between the wheel and work at the given below drop of them himself. तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो लास्ट में फिनिश हो गया ये चैप्टर, अबाउट टू फिनिश, कि किस तरीके से उसने उस चीज़ों को 1 to 1 सेटअप कर दिया। लेखक ने उससे पल्ला झाड़ लिया अपना कि भाई अब मैं तुमसे दोबारा इसके बारे में नहीं कहूँगा। ये देखे साइकिल फिर रिपेयर हो गई और उसने हर जगह सेट कर दी अपने। अब यहाँ पे इसके जो राइटर हैं जेरोम्स, इसके जो राइटर है, अब नाउ यू विल डू द क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी इट इम्प्लाइड दैट। एक लाइन यूज हुई है, आई गॉट अप अर्ली, मैं उठ जाता हूँ जल्दी, उठ जाऊँगा जल्दी। इट इम्प्लाइड दैट, इसका क्या मतलब होता है कि मैं जल्दी उठ जाऊँगा, क्या मीन्स है इसका। ही, तो ऑप्शन है, ही वॉज एन अर्ली राइडर, वह अर्ली राइडर है, जल्दी उठने वाला है। ही वॉज अ लेट राइडर, वो लेट उठने वाला था। ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग, या वो लेट हो गया था उस समय। मार्क द करेक्ट वन, तो माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर है कि ही वाज अ लेट राइडर, वो लेट उठने वाला था। तब वो कह रहा था चलो मैं उस दिन जल्दी उठ जाऊंगा, अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं उस दिन जल्दी उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। तो मीन्स इसका आंसर होगा सेकंड वाला, ही वाज अ लेट राइडर। ओके, तो यू ऑल ऑफ यू विल डू ऑन योर नोटबुक। ओके, द क्वेश्चन सेकंड, द bicycle goes easily enough in the morning and little stiffy after lunch. This remark is, ये जो सेंटेंस है, goes easily enough in the morning and little stiffy after lunch, ये क्या मतलब, कैसा सेंटेंस है? ह्यूमरस, इनएक्यूरेट, sarcastic, enjoyable या मीनिंगलेस? तो आपको अपनी चॉइस से बताइए कैसा सेंटेंस है। तो आंसर, द आंसर इज द bicycle goes easily enough in the morning एंड लिटिल स्टीपी आफ्टर लंच। ये जो सेंटेंस है वो ह्यूमरस भी है, सैटारिस्टिक भी है और इंजॉयबल भी है। इसके 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन, ए एंड मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आप इसे इस तरीके से आपको ये तीनों लिख लेना है जो इसके आंसर हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। द फ्रेंड shock the bicycle violently, find 2 of 3. The friend shocked the bicycle violently, find 2 of 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. जो friend shocked the bicycle violently, उसमें से आप 2 या 3 सेंटेंस आप बताएं जो कि एक्सप्रेस करते हैं आथर का डिसअप्रूवल, कि लेखक उस अपने दोस्त को साइकिल देने के लिए तैयार नहीं था, बामुश्किल उसने साइकिल दी। तो द सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द आथर डिसअप्रूवल ऑफ हिज फ्रेंड टेकिंग द बाइसिकल वॉलंटियर आर एस फॉलोइंग। जो सेंटेंस है इन द टेक्स्ट में जो कि बताता है कि आथर जो था डिसअप्रूवल मतलब सहमत नहीं था अपने दोस्त को साइकिल देने के लिए, तो वो क्या सेंटेंस है? देखें, देयर आर 3 सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं।
फर्स्ट है आई सैड, मैंने कहा डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, ऐसा मत करो तुम इसे चोट पहुंचा दोगे, तो यू विल हर्ट इट, इसे चोट पहुंचा दोगे। तो इसका मतलब ये द राइटर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद अ फ्रेंड फेवर, कि उसे बाइसिकल दे इस फेवर में। फर्स्ट सेंटेंस तो ये है। सेकंड सेंटेंस, आई डिड नॉट सी वाई ही शुड टेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, वाई ही शुड टेक इट, वह क्यों हिला रहा था इसे, इट हैड नॉट डन एनीथिंग हिम, इसके उसके मतलब इसने कुछ भी उसमें नहीं करा। थर्ड सेंटेंस, बिसाइड if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should had he started whacking my dog. तो ये थ्री सेंटेंस हैं, ये आथर के डिसअप्रूवल को बताते हैं ऑफ हिज फ्रेंड के, कि किस तरीके से आथर डिसअप्रूवल अबाउट फ्रेंड में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन है, ये आपको अपनी यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड सेंड मी बिफोर 4 o'clock। 4 बजे से पहले आप मुझे अपनी नोटबुक पे करेंगे ये, और मुझे ये आप भेजेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। ये जो सेंटेंस है, इफ़ नॉट यदि नहीं, तो इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। तो व्हाट डज इट रेफर, इस सेंटेंस में इट क्या मतलब है, इट किस तरीके, मतलब इट किसको दर्शा रहा है। तो व्हेन द लिट आंसर इज व्हेन द लिटिल बॉल बियरिंग ऑफ द बाइसिकल फेल ऑफ, जब जो लिटिल बॉल छोटी छोटी गेंदें थी गोल वाली बाइसिकल की, वो बाहर आ गई, गिर गई। द आथर फ्रेंड टोल्ड हिम टू कैच देम, तो आथर के दोस्त ने कहा भाई उन्हें पकड़े, उन्हें इकट्ठा करें, कलेक्ट करें। ही सैड, उसने कहा इफ़ द ऑल बियरिंग ऑफ द बाइसिकल वर नॉट प्रेजेंट, अगर ये सब रिंग में से रिंग खो गई तो इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंट ऑफ द बाइसिकल, तो वायरस बाइसिकल को सही करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। हैंस इट रिफर टू द absence ऑफ इवन सिंगल बॉल बेयरिंग ऑफ द बाइसिकल। तो इट का मतलब है अगर एक भी बॉल यहाँ खो गई, ओके, एक भी बॉल मिस हो गई, यहाँ पे मीन्स है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पेज नंबर 32 पे, क्वेश्चन फर्स्ट, डिड द फ्रंट व्हील रेरी बबल, क्या जो फ्रंट व्हील था वो वाकई में बबल हिल रहा था, आगे का पहिया। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन विचार है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आंसर, नो द फ्रंट व्हील डिड नॉट बबल, जो फ्रंट व्हील था वो बबल नहीं कर रहा था। द आथर सैड, लेखक ने कहा था कि इट डिड नॉट बबल, यह बबल नहीं कर रहा। देयर वाज नथिंग इन द वर्ड कॉलिंग अ बबल, हाउ एवर आफ्टर द आथर फ्रेंड वाज डन विद इट, लेकिन लेखक मानने को तैयार नहीं था, लेखक का दोस्त मानने को तैयार नहीं था। इट डेफिनेटली स्टार्टेड टू बबल, उसने बाद में ऐसा फिर करिए, फिर हिलना शुरू हो गया इस तरीके से। अगर मीन्स ये है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते, अगर कोई हेल्दी पर्सन भी डॉक्टर के पास जाएगा, सपोज दैट, उससे कहेगा तो वो 50 बीमारी उसके अंदर निकाल देगा। इफ अगर हेल्दी आदमी गया तो उसने कहा देखो ये हिलाते हुए। नाउ क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 33। इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल सेट। इन व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में लेखक ने पाई अपनी बाइसिकल जब वह लौटा टूल सेट से हैमर लेके। तो लेट्स सी द आंसर। When the author returned from the tool shed, जब लेखक लौटा from the tool shed से, he saw, उसने देखा, his friend sitting on the ground, कि उसके दोस्त सिटिंग बैठे हुए हैं on the ground, उसका दोस्त बैठा हुआ है ग्राउंड में, with the front wheel के संग, between his leg, अपने पैरों के बीच में रखा हुआ है। he was playing with it, वह इससे खेल रहा था। ट्विंडलिंग हिला रहा था गोल गोल, राउंड बिटवीन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के बीच में। एंड द रिमेनेंट ऑफ द मशीन, और मशीन के बाकी जो पुर्जे थे, वाई लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड देम, उसके पीछे पड़े हुए थे रास्ते में बाकी के। अगेन क्वेश्चन कि इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल साइड, किस कंडीशन में लेखक ने को मतलब फाइंड माने पाई बाइसिकल जब वह लौटा था टूल साइड से। तो व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल सेट, जब लेखक लौटा था टूल सेट से, ही था, उसने देखा कि हिज फ्रेंड सिटिंग ऑन द ग्राउंड, उसका दोस्त बैठा हुआ है ज़मीन पे, विद द फ्रंट व्हील के साथ, उसके हाथ में है, इसके पैरों के बीच में है, लेगों में घुमा रहा है। ही वाज प्लेइंग विद इट, वह उसके संग खेल रहा था। ट्विंडलिंग इट, हिला रहा था, राउंड एंड इट्स फिंगर, अपनी उंगलियों से। एंड द रिमेनेंट, और जो उसके बाकी पुर्जे थे ऑफ द मशीन के, वाई लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, जो कि उसके इधर उधर पड़े हुए थे, पीछे पड़े हुए थे, साइड में रखे हुए थे। तो माय डियर फ्रेंड, टुडे इट्स इनफ फॉर यू दैट ऑल ऑफ यू विल डू
this home assignment, the question on your notebook, and a rest of the question I shall solve in next video. Okay, at first you fully understand the concept, the summary of the chapter. Okay, next I shall teach you tomorrow. Have a nice day.